Now the class is going to be recorded, and remember that in today's session we will talk about what? In today's session we will talk about John Dryden. When I talk about John Dryden, yeah, whenever you go with this man, especially this poet, you will come to know a very basic point you will come to know. And what is that thing? You will get कि जो John Dryden है, he is a poet of restoration age. If I talk about a very common point I want to take, and in this class I'm not going to take this man as a critic. As a critic I will take, but there are some other things which are very important, which are highly significant. So one thing I want to tell you, कि when you go with this man, when you take this poet, especially John Dryden, then remember that कि John Dryden is what? John Dryden is a poet, and he is a poet of what? He is a poet of restoration age. जो restoration age का जो डेट है, वो अगर आप देखेंगे तो 1660 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि restoration age it covers the period from 1660 to 1700. 1660 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का पीरियड रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है. अबाउट this age and about this poet, what you have to remember, what type of question can be asked, either you are preparing for TGT or PGT or GIC lectureship, you have to make up yourself mentally. You have to make up yourself कि what type of question will be asked, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या चीजें आपको तैयार करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है. Number one point which I want to tell you कि when you go with this poet, especially John Dryden, then remember that कि ड्राइडन एक जो है एक बड़ा नाम है. इट्स अ बिग नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, स्पेशली इन इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा. जो इंग्लिश पोइट्री रही है और जो ड्रामा रहा है उसमें यह एक बड़ा नाम है. मीन्स ही डिड समथिंग. उन्होंने कुछ नया किया, उन्होंने कुछ नया लाया. ऐसा नहीं था कि ओनली ऑन पेपर यू फाइंड, बट इन प्रैक्टिकल व्हेन यू गो विद द पोएम ऑफ दिस मैन यू विल कम टू नो या अनडाउटली ही डिड समथिंग. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या लाया? द इम्पोर्टेंट थिंग आई विल टेल यू कि व्हाट ही डिड या व्हाट वाज डन बाय दिस मैन. वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन, तो फर्स्ट वी यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ हिज एज. उनकी एज का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, व्हाई द एज इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज. मैं पूरा नियो क्लासिकल एज की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप नियो क्लासिकल एज की बात करते हैं तो उस नियो क्लासिकल एज में रेस्टोरेशन एज आ जाता है. उस नियो क्लासिकल एज में आपका जो है आपका ऑगस्टन एज भी आ जाता है, और उस नियो क्लासिकल एज में एज ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाता है. तो रिमेंबर दैट कि अगर मैं पूरे नियो क्लासिकल एज को एक ब्रॉड वे में लेने की कोशिश करूं, इफ आई टेक दैट एज इन अ ब्रॉड वे, you will come to know कि that particular age, that neoclassical age, it covers the period from 1660 to 1785. 1660 ईस्वी से लेकर 1785 ईस्वी तक के पीरियड को आप नियो क्लासिकल एज कह सकते हैं या उसका नाम दे सकते हैं. बट when you talk about neoclassical age, then this particular age, yeah, the particular title, it refers to what ki the literary characteristics, the literary features of classical era. Classical era, that was the era of Homer, that was the era of Virgil, yeah, under the leadership of King Augustus. The particular literature which bloomed, the particular way of writing which came that time, that was imitated by Alexander Pope and his followers. तो उसको जब इंग्लिश लिटरेचर में हम स्टडी करते हैं तो एक ब्रॉड पूरा 100 साल से ज्यादा तक का पीरियड होता है, और 1660 से लेकर 1785 तक शुरू होता है. उस नियो क्लासिकल एज को, that begins from 1660 to 1785, you will come to know कि हम उसको if we want to understand, तो हम उसको कैसे समझ सकते हैं? हम उसको तीन हिस्सों में समझ सकते हैं. द फर्स्ट एज इज रेस्टोरेशन एज, that is also known as age of John Dryden, and this restoration age it covers the period from 1660 to 1700. पहला जो एज है वह रेस्टोरेशन एज है, और वह कब से कब तक कवर करता है? 1660 से लेकर के 1700 ईस्वी तक कवर करता है. इसी एज पर बात करनी, इसी पोएट को लेकर के बात करनी है.
दूसरा जो एज है वह आपका क्या है, 1700 से लेके 1745 तक, वह आगस्टन एज है। और आगस्टन एज, साथ ही साथ एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज पोप वाज द लीडिंग पोएट। तो स्पेशली द सिलेबस विच वी आर कवरिंग, द सिलेबस मीन्स जो जीआईसी लेक्चरशिप का जो सिलेबस है जो हम कवर कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पोप भी आपको मिलेंगे, उसमें आपको जॉन ड्राइडेन भी मिलेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि एक है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। दिस एज ऑफ सेंसिबिलिटी यू विल कम टू नो इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1700 टू 80 from 1745 to 1785, that is also known as age of डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी पोप पर नहीं बात कर रहे हैं। In this class, I have taken only a period of, you can say, 40 years का पीरियड, 1660 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है, I have taken, and that period is known as what? That period is known as restoration age. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि उस पीरियड को हम किसके नाम से जानते हैं, उस पीरियड को हम रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। तो इस एज के सबसे बड़े पोएट कौन है, लीडिंग पोएट कौन है, जॉन ड्राइडेन। This is why that age is also known as age of John Dryden. If you want to note down, you can note down, because you all have these thing, means pen, paper, you all have. If you want to note down, you can note down. But I think you have to try to cover what I want to say, because I'm interacting with you, so you can understand. Even so many videos, बहुत सारा लेक्चर मैंने इस पे दिया था, that's available there, वहां से बाद में भी आप उसे नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट या कोई डेट अगर आपको ऐसा मिलता है, तो यू हैव टू नोट डाउन। सो न्यू क्लासिकल एज, जो एक बड़ा एज अगर मैं कहूँ, उस एज में तीन पीरियड आते हैं। एक आपका रेस्टोरेशन एज आता है 1660 से 1700, उसी को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडेन के भी नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आगस्टन एज आता है, या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, वो 1700 से 1745 तक आता है। तीसरा आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम जो है एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहा जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। उस एज के सबसे बड़े राइटर जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रहे हैं। इन तीनों एज में से सबसे पहले जिस एज को विच वी आर गोइंग टू टेक, या विच वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकुलर एज, दैट इज व्हाट, दैट इज एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। वह आपका क्या है, एज ऑफ जॉन ड्राइडेन है। दो क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट कॉल्ड एज ऑफ जॉन ड्राइडेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाई इज इट कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, बिकॉज द टाइटल ऑफ एनी एज इज हाईली सिग्निफिकेंट। इट गिव्स यू सम क्लू, इधर द पॉलिटिकल सिचुएशन और the name of any big writer, all these things you find. So this age is known as age of John Dryden, because जो जॉन ड्राइडन है वह इस एज के लीडिंग पोएट है, बड़े पोएट है। उनके उनके जितना उनका अपना नेम है, फेम है, या जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वहां तक इस एज में कोई पहुंचा नहीं था। तो एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो ये चीज ध्यान में रखना है कि जॉन ड्राइडेन जो है, ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, he was the first official poet, and he got this means title, yeah, that is also known as laureateship in 1668। तो इसके पहले जो है, अगर मुझे याद है कि कृष्णा जो प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस पे बात भी किया था कि सर पहले ऑफिशियल पोएट तो ये है, लेकिन लाउरियटशिप भी रहा है। तो जो लाउरियटशिप रहा है, या जो ऑफिशियल पोएट की का जो एक तरह से सिलसिला शुरू हुआ, वह जॉन ड्राइडेन से शुरू होता है, लेकिन लाउरियटशिप का जो सिलसिला शुरू होता है वह बेन जॉनसन से। तो बेन जॉनसन और लाउरियरशिप कोई अलग चीज नहीं रहा है, बस उसमें यही था कि इन द एज ऑफ ड्राइडेन, या इफ द मैटर इज रिलेटेड टू जॉन ड्राइडेन, तो किंग चार्ल्स सेकेंड जो है, खुद उन्होंने एक तरह से ये कहा जाए इनको नॉमिनेट किया, या ही सेड दैट कि ही विल बी माय ऑफिशियल पोएट। सो व्हाट आई वांट टू से कि ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। किंग चार्ल्स सेकेंड उनके जमाने के राजा रहे हैं, जो स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और चार्ल्स सेकेंड के जमाने के में ही उनको लाउरियरशिप मिलती है, और यह 1668 की बात है। और ही वॉज बोर्न इन 1631।
वो जो पैदा हुए थे तो 1631 में पैदा हुए थे, डाइड इन 1700। तो यू विल कम टू नो कि 1631 और 1700 नियर अबाउट 68-69 ईयर, जो भी उनका अपना रहा हो, इस तरह का लाइफ आपको देखने को मिलेगा। सो वन थिंग, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, कि जो ये पूरा पीरियड है 1660 से 1700 ईस्वी तक का, इस एज के बड़े पोएट में शुमार रहे हैं। एज ऑफ जॉन ड्राइडन कहा गया। ही वाज born in 1631, died in 1700, got laureateship in 1668। 1668 ईस्वी में उनको लाउरियरशिप मिलता है। ये जनरली हमने इनके बारे में बताया कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट ही इज, व्हाट टाइप ऑफ पोएट ही इज। एंड सेकेंड थिंग कि आई वांट टू टेल यू कि कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप किस में पाते हैं? स्पेशली यू फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड क्रिटिसिज्म। मैं फिर से बता दूं, यू कैन जस्ट सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड क्रिटिसिज्म। तीन फील्ड में आप इनका कंट्रीब्यूशन पाएंगे। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इनका कंट्रीब्यूशन तीन फील्ड में पाते हैं, पोइट्री के फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में और क्रिटिसिज्म के फील्ड में, तो पोइट्री में जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है, दैट इज एप्सलम एंड एची टॉफेल। यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि इन्होंने एक पोयम लिखा था, बहुत सारा लिखा था, जिसमें एक वेल नोन पोयम है, दैट इज एप्सलम एंड एची टॉफेल। ये उन्होंने लिखा था। जब आप ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा में उन्होंने बहुत सारा ड्रामा लिखा जो है, जिसमें औरंगजेब एक नाम है। एक जो सबसे पॉपुलर ड्रामा है वह क्या है? ऑल फॉर लव। ड्रामा में इन्होंने एक नई तरह के ड्रामा की शुरुआत की। ही स्टार्टेड टू राइट अ न्यू टाइप ऑफ प्ले, दैट वाज हीरोइक ट्रेजिडी। तो मैं हीरोइक ट्रेजिडी पर बात करूंगा, मैं एप्सलम एंड एची टॉफेल पर बात करूंगा, और साथ ही साथ उन्होंने क्रिटिसिज्म में भी उनका अपना कंट्रीब्यूशन रहा। क्रिटिसिज्म में डिफेंस ऑफ पोइट्री करके उनका अपना एक उनका क्रिटिसिज्म, या आई थिंक आर्ट ऑफ पोएजी या डिफेंस ऑफ पोएजी, ऐसे करके कोई टाइटल है, वह चीज आता है, उस पे उन्होंने किया हुआ है। और इतना क्रिटिसिज्म में उनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक कहा कि जॉन ड्राइडेन फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जैसे फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हम हेनरी फील्डिंग को कहते हैं, यू विल कम टू नो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एड्रेस्ड दिस मैन एज फादर ऑफ इंग्लिश criticism. So if any poet contribute in the field of poetry, if any poet contribute in the field of drama or in the field of criticism, what will be the appropriate word for such type of writers? इस तरह के राइटर्स के लिए appropriate word क्या होना चाहिए? Remember that you have to say that he was a prolific writer. Prolific, प्रोलिफिक राइटर, जिसने अपना हाथ हर जगह आजमाया हो, दैट राइटर इज व्हाट? दैट राइटर इज प्रोलिफिक राइटर। सो when you go, yeah, when you take these things, then always keep in your mind in a very simple way, I'm telling you कि वो क्या थे, उन्होंने क्या किया और किस पर आपको बात करनी है। मैं फिर से बता दूं कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीआईसी लेक्चरशिप, उनको इनके तीन वर्क को हमेशा ध्यान में रखना है। एप्सलम एंड एचिटोफेल, दूसरा आपका हीरोइक ट्रेजिडी, जिसमें जो है अल्फा लव, वो, और एक उनका क्रिटिसिज्म में। ये चीज आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चीजें आएंगे, चाहे वो डिटेल्ड में उसमें मीन्स डिस्क्रिप्टिव होगा जब आप मेंस में अपियर होंगे, या जो है और आपका ऑब्जेक्टिव होगा तब भी वहां से क्वेश्चन आएगा। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन और कहाँ से आएगा? उनके एज से आएगा। उनके एज का क्या टाइमिंग है? 1660 से 1700 ईस्वी तक है। 1660 ईस्वी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मैं उनके एज का पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। वाई 1660 इज इम्पोर्टेंट? 1660 इज इम्पोर्टेंट बिकॉज
किंग चार्ल्स सेकेंड गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। ही गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। 1660 ईस्वी में किंग चार्ल्स सेकेंड को इंग्लैंड की गद्दी मिलती है। और ये कहा जाता है कि इंग्लैंड की गद्दी जब उनको दोबारा का मतलब कि जब उनको मिली, इंग्लैंड की गद्दी पे जब वो बैठे, तो वह पार्टिकुलर डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज कि उसके पहले जो है इंग्लैंड में किंगशिप खत्म हो गई थी। यू डोंट फाइंड किंगशिप, यू डोंट फाइंड किंगशिप कब से कब तक, 1649 ईस्वी से लेकर के 1660 ईस्वी तक, 11 साल तक इंग्लैंड में किंगशिप नहीं रही है। तो ये जब आप जॉन ड्राइडन को समझने के लिए या जॉन ड्राइडन को जानने के लिए उस समय के जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहे हैं, जो हमड्रम रहा है, जो सिचुएशन रही है, वो चीज जानना जरूरी है। सो यू विल कम टू नो कि उस समय का जो सिचुएशन था, जो 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 एक कंडीशन था, उसमें जो है आपको समझना है। और वह व्हाट वाज दैट कंडीशन, व्हाट वाज दैट सिचुएशन, यू विल कम टू नो कि उस समय का जो सबसे बड़ा सिचुएशन था कि यू फाइंड वर्ड कि किंगशिप नहीं रहा है। और किंगशिप कब से कब तक नहीं रहा है? देयर वाज नो किंगशिप फ्रॉम 1649 टू 1660। 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक कोई किंगशिप नहीं रहा है। जब इस दरमियान कोई किंगशिप नहीं होता है, सो रिमेंबर दैट कि उस दरमियान आप पाएंगे या उस दरमियान आप देखेंगे कि किंगशिप के ना रहने के बीच में दो बड़े फिगर आते हैं। वन वाज ओलिवर क्रॉमवेल एंड सेकेंड वाज रिचर्ड क्रॉमवेल। 1649 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल नाम के एक पर्सन ने पूरे इंग्लैंड को में, उन्होंने एक तरह से अगर मैं कहूं कि ही रूल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द सपोर्ट ऑफ द इंग्लिश पीपल। ओलिवर क्रॉमवेल 1649 से लेकर 1658 तक, फिर 1658 से लेकर 1660 ईस्वी तक आपका रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं। तो दीज आर द टू नेम्स, these are the two names which you have to remember, which I would like to tell you. And what are these two things? These are the two important things जो हमें माइंड मेकअप करना है कि 1649 में आखिर ऐसा क्या हुआ। वाई 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 इंग्लैंड लास्ट किंगशिप, why English people were means why they stood against kingship or king? That is the question कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने किंग को बाहर कर दिया। आपको याद होगा कि those who have gone with the history, especially history of English literature, they know it very well कि there was a king Charles first. Charles first was assassinated in 1649। 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट को एजाजिनेट किया गया था। और उसके पहले जब आप एज ऑफ मिल्टन में जाते हैं तो ये पता चलता है कि 1642 ईस्वी में सिविल वार की शुरुआत होती है। तो मैं 5 डेट पे बात कर रहा हूँ: 1642, 1649, 1658, 1660। देन रिमेंबर दैट कि 1642 में, 1642 में जब आप 1642 की बात करते हैं, जिसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एज ऑफ जॉन मिल्टन की बात कर रहे हैं। 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में सिविल वार की शुरुआत होती, सिविल वार स्टार्टेड। सिविल वार हैपेंड बिटवीन हुम? सिविल वार हैपेंड बिटवीन किंग और किंग के अलावा जो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे। एक तरह से मैं ये कहूं कि सपोर्टर ऑफ द किंग और जो 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 पीपल थे, जो जो एक तरह से पीपल हु वर लिविंग इन इंग्लैंड, उन्हीं में आपस में कि दो तरह का ग्रुप हो जाता है। टोरी को आप पाते हैं, विक को आप पाते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो व्हाट हैपेंड कि इस लड़ाई में जब सिविल वार शुरू होता है, तो इस लड़ाई में द पीपल गॉट एंग्री, इंग्लिश पीपल गॉट एंग्री, दे वर नॉट फेवरिंग देयर किंग। वे अपने राजा का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड व्हाट हैपेंड दैट कि इंस्टेड ऑफ द किंग दे वेलकम्ड हुम, इंस्टेड ऑफ द किंग दे वेलकम एक ओलिवर क्रॉमवेल का। और ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, ही सपोर्टेड व्हाट, ही सपोर्टेड तरह से कहा जाए पार्लियामेंट का। तो किंगशिप को खत्म करके पार्लियामेंट को लाने की बात हुई।
Parliament की undoubtedly with the people, English people will decide कि who will rule over England. English people will decide. ऐसा नहीं कि कोई राजा है तो उसका बेटा भी कल आके गद्दी संभालेगा. नो, नॉट एट ऑल. इंग्लिश पीपल. ये चीज जो हुआ तो वी गेट द पॉइंट कि 1642 में सिविल वार की शुरुआत होती है. एंड दिस सिविल वार आकर्ड बिटवीन whom this civil war occurred between English means court and पार्लियामेंट. इंग्लैंड के राजा के बीच में और सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बीच में दिस पार्टिकुलर वार टुक प्लेस. वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि व्हेन दिस वार टुक प्लेस you will come to know कि people stood against kingship, people stood against their king, and in 1649 his king Charles फर्स्ट was assassinated. एक दूसरी जो घटना होती है कि चार्ल्स फर्स्ट जो उनके किंग थे उनकी हत्या 1649 ईस्वी में कर दी जाती है. तो यह एक दूसरा इवेंट हुआ था, यह एक दूसरी बात हुई थी जो हम वहां उस चीज को देखते हैं. Again, I would like to tell you कि king was brutally murdered. If I say assassinated, brutally murdered, he was beheaded. उनका एक तरह से उनका सर कलम कर दिया गया. तो यू विल कम टू नो ही वाज beheaded, उनको कर दिया गया था. और ये घटना कब की? इन 1649. जब राजा की हत्या कर दी गई तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ओलिवर क्रामवेल थे, वन हु मैनेज द होल प्लॉट, वन हु मैनेज द होल थिंग, यू विल कम टू नो कि इंग्लिश पीपल जस्ट उनको उन्होंने सपोर्ट किया कि नाउ यू हैव टू रन इंग्लैंड. उन्होंने with the help of English people he ruled over England. If I say directly or indirectly, but there was what he English people supported him. English people supported him. He ruled there, and he ruled there from 1649 to 1660. 1649 से 1660 ईस्वी तक डेमोक्रेसी रही है. और डेमोक्रेसी उस तरह का नहीं जैसे इन मॉडर्न सिनेरियो में हम देखते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स कि द पीपल अल्टीमेटली सपोर्टेड हिम, इंग्लिश पीपल सपोर्टेड हिम, ही वाज देयर. लेकिन उनका जो टाइमिंग रहा है वो टाइमिंग कब से कब तक रहा है? 1649 से लेकर 1658 ईस्वी तक. यू विल कम टू नो या यू विल फाइंड दैट कि ही वाज देयर फ्रॉम 1649 टू 1658. 1649 से लेकर 1658 ईस्वी तक वो वहां पर थे. जब वो 1649 से लेकर 1658 ईस्वी तक वहां पर थे तो उनकी मौत 1658 में होती. उनकी मौत के बाद 2 साल के लिए कौन आते हैं? रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं. तो 1658 से 1660 एक डेट 1642 सिविल वार, दूसरी डेट 1649 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज रिमार्केबल फॉरवर्ड, दैट इज रिमार्केबल फॉर एसासिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. फिर तीसरी डेट मैंने बताया कि 1649 से 1658 ईस्वी तक ओलिवर क्रामवेल. फिर आपको चौथी डेट मैंने आपको बताया 1658 से 1660 ईस्वी तक रिचर्ड क्रामवेल. ओलिवर क्रामवेल 1649 से 1658, उसके बाद रिचर्ड क्रामवेल 1658 से 1660. अब इतना जब पॉलिटिकल हमड्रम था, अनडाउटली इट वाज अ नॉट मींस थिंग्स वर नॉट नॉर्मल. एंड इन सच अ क्रूशल सिचुएशन वी फाइंड दैट कि ये जो क्रूशल सिचुएशन था, इस क्रूशल सिचुएशन में आखिरकार वी कम टू नो कि उनको वो चीज जो चार्ल्स फर्स्ट के बाद जो चार्ल्स सेकेंड आते हैं उनको इंग्लैंड छोड़ करके कहाँ पे जाना पड़ा था? उनको इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस जाना पड़ा था. चार्ल्स सेकेंड लेफ्ट इंग्लैंड इन 1649 एंड गॉट शेल्टर इन फ्रांस. ये घटना कब की है? 1649 ईस्वी की है. लेकिन 11 साल के बाद आफ्टर 11 ईयर्स you will come to know कि after the death of Richard Cromwell again English people supported his king. Again we find kingship in England. और ये घटना कब की होती है? 1660 ईस्वी की होती है. दिस इज वाई दैट डेट इज नोन एज रेस्टोरेशन एज. री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना, मीन्स चार्ल्स सेकेंड गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. अगेन वी फाइंड किंगशिप इन इंग्लैंड. Again, we find autocracy in England. Again, we find monopoly of king in England. All these things we see, all these things we find. So, what I want to say, what I want to tell you, when you take this writer, especially John Dryden
तो जॉन ड्राइडन को, if we want to understand Absalom and Achitophel, his masterpiece, it is very important that we have to go what it is very important that we have to go the basic characteristics of the age, especially the political humdrum, you will the chaotic situation, assassination of Charles फर्स्ट का यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। Next thing I would like to say, yeah, next point I would like to tell you कि why the age is known as Restoration Age, because King Charles II came back from France to England। फ्रांस से इंग्लैंड को चार्ल्स सेकंड की वापसी होती है, इसलिए हम उसको किसके नाम से जानते हैं, इसलिए हम उसको रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। रिमेंबर दैट चार्ल्स सेकंड केम बैक फ्रॉम यू कैन से कि फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। जब वो 1660 ईस्वी में वापस आते हैं तो कुछ चीजें होती है विच एवरी मींस दैट इसेंशियल कि दैट वी ऑल शुड गो विद दैट पॉइंट। पहला चीज की थिएटर वाज रीओपन इन 1660, थिएटर वाज रीओपन। 1660 ईस्वी में थिएटर को रीओपन किया गया, यह एक नई चीज होती है। क्योंकि अब आप ये सोचेंगे कि थिएटर क्या बंद कब हुआ था, ऑलरेडी यू नो दैट डेट की इन 1643 थिएटर वाज बैंड। तो जो 1642 जो डेट रहा है वह दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, एक तो स्टार्टिंग ऑफ सिविल वॉर, दूसरा थिएटर वाज बैंड। तो जो थिएटर बैन किया गया, इस थिएटर को रीओपन किया जाता है। कब रीओपन किया जाता है? इन 1660 व्हेन किंग चार्ल्स सेकंड केम बैक फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। जब फ्रांस से उनकी वापसी इंग्लैंड को होती है तब हम ये चीज देखते हैं कि ये डेट कब की है, 1660 की है। और थिएटर को ओपन करने से क्या मतलब है? अगर थिएटर ओपन होता है तो थिएटर को ओपन करने से क्या मतलब है, या थिएटर को बंद बैन क्यों किया गया था, व्हाट वाज द रीजन? थिएटर को जिस समय बैन किया गया था उस समय द सिचुएशन वाज इंटायरली डिफरेंट। एंड व्हाट वाज द सिचुएशन वाज कि अल्टीमेटली जो लोग थे दे वर नॉट मींस स्पेशली किंग एंड हिज सपोर्टर्स, या जो लोग थे उनको ऐसा लगता था कि मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ चांस कि पीपल गेदर्ड देयर एंड देयर इज अ चांस दैट दे विल स्टैंड अगेंस्ट किंग। एंड दिस इज वाई, और उसमें प्यूरिटन जो फॉलोअर्स थे उनका बड़ा योगदान रहा कि थिएटर जो है वहां पे उस तरह की सब्जेक्ट मैटर नहीं दिखाए जा रहे हैं एज फॉर व्हाट इट हैज बीन रिटन। सो इन 1642 theater was banned, but king came with new spirit. King came back with new zeal, you will come to know vigor, energy, and he just reopened theater. And as he reopened theater, you will come to know the starting of what you will come to know the starting of a new type of play. Shakespeare became out of fashion in this era. Remember that when you talk about this era, especially age of John Dryden, you will come to know that Shakespeare became out of fashion. We don't find the significance, we don't find that the people are interested to see the play of शेक्सपियर, जिसका रेफरेंस जो है उस समय के एक डायरिस्ट है सैमुअल पेपिस ने जिसका जिक्र किया हुआ है कि नो वन वाज इंटरेस्टेड टू सी द प्ले ऑफ दैट मैन। इन दिस वे ही हैज नॉट रिटन बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही वांट्स टू गिव these such a type of thing we find। Second thing ki when you talk about this era, what other things you find in this age? First you find what in this age, first you find the establishing of the Royal Society। रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। रॉयल सोसाइटी का मेंबर जो है इनको भी बनाया जाता है किंग सॉरी जॉन ड्राइडन को, लेकिन जो उसकी फी होती है ही डिडंट पे। एंड आई थिंक इन नियर अबाउट 1668 या ही वाज जस्ट ही लॉस्ट द मेंबरशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी। जो रॉयल सोसाइटी था वो क्या था? रॉयल सोसाइटी एक तरह से कहा जाए कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के जो एकेडमिशियंस थे, दे वर द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी।
and whatever the scientific work or scientific discoveries took place, we find that work, that thing was written in prosaic language, या उसको जो है लिखने का काम होता था। तो एकेडमिशियंस और अच्छे लोग, बेहतरीन लोग वहां पर जो है होते थे। इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो उस एज से जुड़ा हुआ है कि हाउ द एज वाज डिफरेंट टू द एज ऑफ जॉन मिल्टन। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन का जो एज था, दैट वाज द एज ऑफ द लॉन्ग नैरेटिव पोयम, जिसमें एपिक, सीरियस सब्जेक्ट मैटर, ग्रांड स्टाइल में बातें की गई है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट दिस एज, यू कम टू नो कि जो इस एज में जो बात की जाती है, इस एज में जितनी भी बातें की गई है, वह जो है आपका हीरोइक कपलेट में कही गई है, ना कि ब्लैंक वर्ड्स में। तो इंस्टेड ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन दिस एज वी फाइंड व्हाट, इंस्टेड ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन दिस एज वी फाइंड व्हाट, इन दिस एज वी फाइंड हीरोइक कपलेट। तो यू कैन नोट डाउन, एंड ऑलरेडी आपको वाकिफ होंगे, पता भी होगा। सो थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, व्हाट आर दोज थिंग, कि यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड हीरोइक कपलेट। व्हाट डू यू फाइंड? यू फाइंड हीरोइक कपलेट, नंबर वन पॉइंट। वहां पे आपको क्या मिलता है? वहां पे आपको जो है ब्लैंक वर्ड्स मिलता है। दूसरा चीज कि जब आप एज ऑफ जॉन मिल्टन की बात करते हैं, 1660 से पहले का जो जमाना रहा है, तो दैट टाइम यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, यू फाइंड सम, यू फाइंड एलिजी, यू फाइंड सब्जेक्टिविटी, यू फाइंड पर्सनालिटी, इस सब भी चीजें मिलती हैं। लेकिन वहां की पोयम में यू डोंट फाइंड द पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर। एज ऑफ जो जॉन ड्राइडेन रहा है, यह एक ऐसा एज था जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हियर यू फाइंड द पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर, व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड, सच अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर यू फाइंड। और जो चीज जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, दैट वाज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स रेस, दैट वाज रिलेटेड टू ह्यूमन रेस, downfall of Adam, Eve. You will come to know the concept of spirituality, heaven, hell, Satan, how Adam and Eve disobeyed God. This subject matter you find. But here, especially in the age of John Dryden, you don't find God, you don't find Satan, you don't find anything related to human race. But here you find what? Here you find courtly manner. फिर से आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो जो जमाना जो है मिल्टन का रहा है, जो भी वहां पे बताया गया, whether that has been told in whether that has been told, you will come to know कि जो भी वहां पे बताया गया, whether that has been told, वो चाहे आपका जो भी मतलब, what I want to say, just I want to say कि whether that has been told in paradise, या whether that has been told in paradise, चाहे वो पैराडाइज लास्ट में बताया गया हो, चाहे वो पैराडाइज रिगेंड में बताया गया हो, या जो है चाहे वो बाद में कहीं पे बताया गया। व्हाट अगेन आई वुड लाइक टू से कि वेदर दैट हैज बीन टोल्ड इन पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेंड, या इफ आई से कि सैमसन एगोनिस्ट, ये वहां पे चीजें थी कि वहां पे क्या था, इमोशन था, वहां पे इमोशन था, रिलेशनशिप था, और ऐसी चीजों को था कि दैट वर गोइंग टू बाइंड ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को बांधने का, स्पेशली प्यूरिटी ऑफ सोल और हार्ट को लेकर के बात हुई है, कहाँ पे, एज ऑफ जॉन मिल्टन में। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो यू फाइंड पॉलिटिकल हमड्रम, एंड व्हाट पॉलिटिकल हमड्रम, पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर, बिब्लिकल एलिगरी, पॉलिटिकल एलिगरी, these things you find, whether you take Absalom and Achitophel, whether you take मैक फेक्ना जो उनका पोयम था उसको आप लेंगे, these things you फाइंड। स्पेशली जो एप्सलम एंड एचिटोफेल रहा है, जो 1681 में आता है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि यह पॉलिटिकल एलिगरी है, और साथ ही साथ वो बिब्लिकल एलिगरी को। तो एलिगरी मुझे याद है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, मैंने आपको पहले भी वो चीजें बताई थी। तो जब भी आप जॉन ड्राइडेन को, वेन एवर यू टॉक अबाउट दिस मैन, आपको हमेशा ध्यान में रखना है हीरोइक कपलेट, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आयरनी, आपको यू हैव टू कीप रिमेम्बर की सटायर,
You have to keep remember political means political humdrum, या जो chaotic situation, the political humdrum or the chaotic situation which we find, which we see. You just find that thing there also. So when you go with these points, when you see these points, so what other things are important? What other things you have to remember? That is what की courtly manner. एंड दिस कोर्टली मैनर में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि व्हेन यू सी अबाउट स्पेशली कोर्टली मैनर किंग चार्ल्स सेकेंड, तो वो जो किंग चार्ल्स सेकेंड के जो कोर्ट का ब्यूटी है, यू डोंट फाइंड द ब्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग चार्ल्स सेकेंड, बल्कि वहां की जो कॉन्स्पिरेसी है, दैट पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी हैज बीन डिस्क्राइब. सो व्हाट डू यू फाइंड? You find irony, you find satire, you find heroic couplet, you find courtly manner, and especially the conspiracy of means in the court of King Charles II. Charles II के खिलाफ क्या policies, क्या conspiracy, what has been done by Absalom, what has been done by Achitophel, and who others were involved in that, means that was the popish plot को लेकर के. All these things you go, all these things you find. So the important thing is that ki, is it the motive of the poem? When you read the poem of Donne, when you read the poem of John Milton, when you read the poem of William Shakespeare, you find in most of the poems, you find love, you find affection, you find beauty, you find concept of humanism. And even जो great poet जॉन मिल्टन रहे हैं, उनकी पोयम में whether you go means paradise lost, paradise regained, इफ यू टेक जो और भी उनका ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी, या उनका जो एलिजी आया था, उस सब में एक एक अपील जरूर रहा था. वह क्या अपील था? कि ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी वी शुड शो समथिंग, वी शुड डू समथिंग, कि जो ह्यूमन रेस से रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स थी, वी फाइंड दैट थिंग. बट इन द एज ऑफ ड्राइडन यू डोंट फाइंड सच अ थिंग. ड्राइडन में की पोइट्री में यू फाइंड व्हाट? आर्टिफिशियलिटी. you find artificiality. Even the prosaic element, जो prose का features था, the features of prose we find in the poetry of whom? We find in the poetry of John Dryden. So here I would like to explain what? Here I would like to explain Absalom and Achitophel to tell you कि वहां पे कैसे आपको चीजें नजर आती हैं. Whenever I talk about Absalom and Achitophel, remember that it published in 1681. It is known as magnum opus या masterpiece. It is written in heroic couplet. और heroic couplet की जहां तक बात आती है, तो it is said that the heroic couplet was introduced by Geoffrey Chaucer. It was made popular by John Dryden and perfected by Alexander Pope. heroic couplet से तीन नाम जुड़ जाता है. इंट्रोड्यूस किसने किया है? आपके जियोफ्रे चौसर ने किया है. पॉपुलर किसने किया हुआ है? जॉन ड्राइडन ने किया है. परफेक्ट किसने किया हुआ है? परफेक्ट आपके अलेक्जेंडर पोप ने किया है. ये तीन नाम. तो ये जो उनका मास्टरपीस है, यह हीरोइक कपलेट में लिखा गया है. नाउ व्हाट इज हीरोइक कपलेट? पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर. दो लाइनों का जोड़ा चलेगा, पेयर ऑफ राइमिंग, और वे लाइनें आपस में राइम करेंगी. वे किस में होंगी? आयाम्बिक पेंटामीटर में होंगी. दोज हु हैव अटेंडेड माय क्लास दे नो इट वेरी वेल कि आयाम्बिक, मैंने उन्हें बताया था, आयाम्बिक का मतलब कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन. दीज थिंग्स आर अवेलेबल, वो सारी चीजें. फिर पेंटा का मतलब होता है फाइव. पेंटा मीन्स फाइव, इधर 5 feet or 10 syllable. Then the question is that ki what other things we find? We find heroic couplet, we find irony, we find satire, we find courtly manner. ये चार बातें जो मैंने डिस्कस किया था, ये चार बातें आपको यहाँ पे मिलेगी. बट अदर थिंग इज दैट कि द होल पोयम, द लॉन्ग नरेटिव पोयम है, द होल पोयम इज ओनली एसोसिएटेड टू व्हाट? इट्स ओनली एसोसिएटेड कि व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड. What type of conspiracy was made by the people who were living in the court of King Charles II, स्पेशली उनको हटाने के लिए.
तो यहाँ पर एक डेट मैं और जोड़ूंगा, उससे पहले या उसके बाद में भी 1688 ईस्वी में वी फाइंड अनदर रिवॉल्यूशन, दैट वाज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। 1688 ईस्वी में रक्त विहीन क्रांति होती है। और ये जो रक्त विहीन क्रांति हुई थी, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बिकॉज विदाउट किलिंग एनीवन किंग चार्ल्स सेकंड वाज डिथ्रोन। बगैर किसी मार काट के, बगैर किसी खून खराबे के राजा को गद्दी से हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है? किंग चार्ल्स सेकंड को। और एक समय राजा को गद्दी से हटाने के लिए चार्ल्स फर्स्ट का मर्डर किया गया था 1649 ईस्वी में। तो आप एक ध्यान में रखिएगा कि टू डिथ्रोन Charles I, he was assassinated, and in 1688 again we find कि King Charles II was dethroned, लेकिन बगैर किसी, without any blood, without any ताकत का इस्तेमाल किए। all these things we find। तो what I want to tell you कि जो एप्सलम और एचिटाफेल है, it is said that it's the political allegory। now the question is that कि what is political allegory? पॉलिटिकल एलिगरी जो होता है, एलिगरी इज अ टाइप ऑफ नरेशन, या इट्स अ नरेशन, नरेशन अ टाइप ऑफ नरेशन इन विच स्टोरी इज टोल्ड विच कंटेन्स सेकेंडरी मीनिंग। एलिगरी जो होती है उसमें एक कहानी बताई जाती है और उस कहानी की एक दूसरी मीनिंग भी निकलती है। या समटाइम्स इट इज आल्सो सेड दैट कि इन एलिगरी वी फाइंड टू पैरेलल स्टोरीज। एलिग्री में हम दो पैरेलल स्टोरीज पाते, ये भी कहा जाता है। तो चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए कि इन एलिग्री वी फाइंड टू पैरेलल स्टोरीज, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एलिग्री आती है तो उस पार्टिकुलर एलिग्री में क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ नरेशन, या इन इट अ स्टोरी इज टोल्ड विच कंटेन्स सेकेंडरी मीनिंग, जिसमें एक सेकेंडरी मीनिंग निकलती है। इसमें जो कहानी एब्सलम एंड एचिटोफेल को जो लेकर के बात कही गई है, यह पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द लाइफ एंड स्पेशली द टाइम ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। व्हाट हैपेंड इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में क्या हुआ था। तो होता क्या है कि किंग चार्ल्स सेकेंड की जो शादी होती है, इट ही मैरिड कैथरीन ब्रागैंजा। उनकी जो शादी होती है वो कैथरीन ब्रागैंजा के साथ होती है। कैथरीन ब्रागैंजा पुर्तगीज प्रिंसेस थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और उस समय पुर्तगालियों का जो अधिकार था बॉम्बे पे था। तो शादी में पुर्तगालियों ने बॉम्बे एक तरह से डाउरी के रूप में उनको दिया था कि ये अब आपका हो गया, आप इस पर अपना वो करिए। तो रिमेम्बर दैट कि King Charles II, who was the king of England, he married whom? He married Catherine Braganza, that was the Portuguese princess, जो पुर्तगाल की राजकुमारी रही है। शादी के कई वर्षों के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम आई कि नाउ द किंग इज गोइंग टू बी ओल्ड, हु विल बी द सक्सेसर, हु विल बी द न्यू किंग ऑफ इंग्लैंड। तो किंग ने खुद जो है अपने भाई को, जो उनके अपने थे, उनको जो है आगे किया, और वो भी मुझे लगता है कजिन थे, उनको उन्होंने आगे किया उनके नाम को कि ये होना चाहिए। लेकिन उनमें से जो किंग के मिनिस्टर्स थे, कोर्टियर्स थे, उन लोगों की ये बात अच्छी नहीं लगी, बिकॉज दैट टाइम वी फाइंड व्हाट वी फाइंड मीन्स दो तरह की आइडियोलॉजी, टोरी, विग, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ये जो है दरबार में इस तरह के सपोर्टर थे। देन यू विल कम टू नो कि व्हाट हैपेंड, कि किंग को हटाने के लिए सत्ता से तमाम तरह के प्लान, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी द पीपल स्टार्टेड टू मेक मीन सो मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। उनमें से एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने ये किया कि एप्सालम जो है, एक कैरेक्टर का नाम है, वो एप्सालम जो रहा है, दैट वाज एन इलिजिटिमेट सन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड। इलिजिटिमेट, जिसका ब्लड रिलेशन ना रहा हो। राजा थे, उनकी कई रानियां थी, कि रानियां क्या, या किसी से भी उनका रिलेशन रहा होगा, उससे उनको एक बेटा हुआ था, लेकिन वह लिजिटिमेट सन नहीं था। दैट वाज द इलिजिटिमेट एप्सालम के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। तो एब्सालम को लोगों ने कहा, जो किंग के खिलाफ थे, कि यू आर द सन ऑफ द किंग, वेदर legitimate or illegitimate that doesn't matter, but you are the son of the king, now you have to claim that you will be the new successor। लेकिन जो
जो वहाँ का अपना जो नियम रहा होगा उसमें ये है कि जो किंग की अपनी रानी रही है कैथरीन ब्रागैंजा से, उन्हीं से उत्पन्न संतान ही गद्दी पर बैठेगा, लेकिन उनको कोई संतान ही नहीं था। तो एप्सलम क्या करते हैं, एप्सलम किंग के खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आई एम योर ब्लड, आई एम योर सन, एंड इट डजेंट मैटर कि लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट, आई विल बी द सक्सेसर ऑफ द फैमिली। इस तरह की चीजें आती हैं। उनको भड़काने में जिस आदमी का नाम था वो क्या था, दैट वाज द एचिटोफेल। एचिटोफेल, अर्लाफ शेप्टिसबरी थे एचिटोफेल। अर्लाफ शेप्टिसबरी का मतलब है कि किंग के अपने दरबारियों में से, उनके एक तरह से कहा जाए मिनिस्टर से काफी करीब थे। उन्होंने उनको भड़काया। एक एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह को बाद में किंग जो है क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं। उसमें एब्सालम को भी पकड़ा जाता है जिंदा। तो ये कहा जाता है कि एब्सालम ने कई अवसर पर किंग की जान बचाई थी, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए। ये पूरी घटना, और उस समय जो किंग थे वो उस समय इंग्लैंड नहीं बल्कि यूके का कॉन्सेप्ट था, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिला करके होते थे। तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्सेप्ट था, वहां पे राजा को हटाने के लिए एक पॉपिश प्लॉट तैयार किया गया। पॉपिश प्लॉट। और पॉपिश प्लॉट क्या था कि पॉपिश प्लॉट एक ऐसा प्लॉट था जिसमें ये दिखाया गया कि फ्रांस, जहां से भी किंग चार्ल्स सेकेंड वापस आए हैं, कुछ ऐसा ट्रीटी चल रही कि दोबारा जो है इंग्लैंड गुलाम बन जाएगा। तो राजा के नेम और उसकी फेम को खराब करने की भरसक कोशिश की गई। इट वाज एन अटेम्प्ट टू डिफेम द किंग, किंग को डिफेम करने की कोशिश की गई। वी कम टू नो कि ये जो डिफेम था, इस डिफेम का इतना असर हुआ कि कॉन्स्पिरेसी हुई, तमाम लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन फिर भी किंग काबिज रहे। तो ये जितना सिचुएशन हुआ था, इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया, जॉन ड्राइडन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया इन हिज मास्टरपीस एब्सालम एंड एचिटोफेल। टाइटल उसका क्या है, एब्सालम एंड एचिटोफेल। एब्सालम इलिजिटिमेट सन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, और एचिटाफिल उनकी मिनिस्टर। जब इसको डिस्क्राइब किया गया, जब इसको बताया गया वहां पर, या इस तरह की चीजें आती है, तो एक दूसरी चीज आती है कि इसको डायरेक्टली नहीं बता दिया गया कि ऐसी स्टोरी हुई, बता दिया गया। इस चीज को बताने के लिए बाइबल से जो है कैरेक्टर लिए गए, एक और उसी के पैरेलल स्टोरी खड़ी की गई। और जब आप पोयम को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इंग्लैंड को इजराइल दिखाया गया है, डायरेक्टली नहीं कहा गया ये इंग्लैंड है, बल्कि इंग्लैंड की जगह कौन सा शब्द आएगा, इजराइल आएगा। चार्ल्स सेकंड की जगह किंग डेविड आएगा। चार्ल्स सेकंड की जगह किंग डेविड आएगा। और जो चार्ल्स सेकंड के जो ओरिजिनल बेटे थे वो ड्यूक ऑफ मनमथ थे, ड्यूक ऑफ मनमथ की जगह जो है एब्सालम आया हुआ है। जो उनके मिनिस्टर थे जिसको एचिटोफेल है, उनका ओरिजिनल क्या था, एक टाइटल था अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी, उनकी जगह वो चीजें। तो दो पैरेलल स्टोरी लेकर के चलने की कोशिश की जा रही है, चलाई जा रही है। इस तरह की सिचुएशन को यू फाइंड, यू कैन जस्ट सी, इस तरह की सिचुएशन आती है हमारे सामने, हम उसको देखते हैं। तो जब ऐसे पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर को लिया गया और उस पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर को लेकर के हीरोइक कपलेट में चीज को प्रेजेंट किया गया नैरेटिव फॉर्म में, और साथ ही साथ सटायर का यूज, आयरनी का यूज, दीज थिंग्स वी फाइंड, तो ये लगता है कि वो जो जमाना था वहां पे आम आदमी से लिटरेचर का सरोकार नहीं है। यू डोंट फाइंड द कॉमन मैन एज यू फाइंड। जब मैंने वर्ड्सवर्थ पढ़ाया था तो उसमें सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल, कुक्कू, एक आम आदमी, आम आम जो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको भी लेकर के बात होती, बट नॉट यहाँ पर। यहाँ पे यू फाइंड ओनली द पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योटिक सिचुएशन, हम ड्रम, दीज थिंग्स यू फाइंड। सो ये चीज आपको माइंड में रखना है। दूसरा चीज जो मैंने कहा कि एक और एस्पेक्ट पे बात करनी पड़ेगी कि हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ड्रामा। When I say, yeah, when I talk about his contribution in the field of drama, then you know कि he started to write a new type of play that was heroic tragedy. And this heroic tragedy ने क्या किया? इस heroic tragedy ने शेक्सपियरियन ट्रेजिडी को, इट बिकेम आउट ऑफ फैशन, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी बिकेम आउट ऑफ फैशन। एंड हीरोइक ट्रेजिडी जो था, इसके ऊपर इम्पैक्ट किसका था, वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच लिटरेचर, वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द
फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जो हीरोइक ट्रेजेडी रही है उसका जो सब्जेक्ट मैटर था, लव एंड वैलर। व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर? द सब्जेक्ट मैटर वाज लव एंड वैलर। यू विल कम टू नो कि ये जो सब्जेक्ट मैटर था, लव एंड वैलर था, एंड दिस सब्जेक्ट मैटर लव एंड वैलर, यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन किया गया, एब्सोल्यूट लव और एब्सोल्यूट वैलर दिखाया गया। एक मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। एक तो इस पे बॉम्बास्टिक स्पीच रहा है, इसमें भी हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है ज्यादातर। उसमें ट्रेजेडी में फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट रहा है, और ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से बिल्कुल अलग। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जो कैरेक्टर होता था, वो लगता था हमारे और आपके बीच का है। मैकबेथ ने अगर कोई गलती की तो रिपेंट करते हैं, लेडी मैकबेथ कोई गलती करती तो रिपेंट करती है। लेकिन हीरोइक ट्रेजेडी में जो राइटर है, ऐसा लगता है कि उनमें डिविनिटी, नॉट राइटर, कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हीरोइक ट्रेजेडी के, ऐसा लगता है उसमें डिविनिटी है, दे हैव द सेलेस्टियल ब्यूटी उनमें है, कि गॉड गिफ्टेड कुछ टैलेंट आ गया है, इस तरह का चीजें आती है। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि एक प्ले है, द नेम ऑफ दैट प्ले इज ऑल फॉर लव। 1678 में आता है, 1678 ईस्वी में। मैं फिर से बता दूं, एसालम एचिटाफिल 1681 ईस्वी में आता है। 1668 ईस्वी में इनको लाउरियटशिप मिलती है। 1678 ईस्वी में इन्होंने एक प्ले लिखा, और कई प्ले लिखे थे। औरंगजेब करके जो है, द इंडियन इम्परर करके हीरोइक ट्रेजेडी रहा। मैं एक को ले रहा हूँ जो बड़ा फेमस है, दैट इज ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव का एक और टाइटल है, द वर्ल्ड विल लॉस्ट। वहां पे आप देखेंगे द वर्ल्ड विल लास्ट या ऑल फॉर लव, यह शेक्सपियर के प्ले एंटनी और क्लियोपैट्रा पर है। लेकिन जो एंटनी, जो क्लियोपैट्रा शेक्सपियर ने दिखाया है, उस एंटनी और उस क्लियोपैट्रा से यहाँ के कैरेक्टर्स इंटायरली डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? कि दैट पर्टिकुलर द ब्यूटी ऑफ क्लियोपेट्रा विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर, यू कांट सी दैट ब्यूटी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो ब्यूटी है क्लियोपेट्रा की, दैट इज सिलेस्टियल, दैट इज डिवाइन, मैचलेस, लाइक एन एंजल। ऐसा लगता है कि स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड यू फाइंड ऑन क्लियोपेट्रा, स्पेशल ग्रेस ऑफ गॉड इज विद क्लियोपेट्रा। इस तरह की चीजें दिखाई गई है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, कि यही सेम चीजें एंटनी के साथ होता है। जब एंटनी की ब्रेवरी हम देखते हैं, एंटनी का जब हम करेज देखते हैं, तो वह भी अपने में एकदम एब्सोल्यूट नजर आता है, कि उनकी इतना बोल्ड कोई है ही नहीं। दीज थिंग्स वी फाइंड हियर। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि ये जो प्ले है, लिखा तो जाना चाहिए था हीरोइक कपलेट में, क्योंकि हीरोइक प्ले ज्यादातर हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। लेकिन इस प्ले को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और उसके लिखने के पीछे एक ही रीजन था ब्लैंक वर्स के, कि वो ये दिखाना चाहते थे कि इफ शेक्सपियर कैन राइट such a type of play in blank verse, then I can also write. Even the time, even blank verse became out of fashion. Even the way of Shakespeare, as Shakespeare wrote love tragedies that was not highly significant in this era, the people were not ready to see, the people were not ready to welcome. मैंने जैसे बताया कि जो उस समय के डायरिस्ट है, उन्होंने भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो एक कंट्रीब्यूशन इनका जो है किसको लेकर के है, हीरोइक ट्रेजेडी को लेकर के है, जिसमें लव है, वैलर है, बॉम्बास्टिक स्पीच है, और जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो लव को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे वो वैलर को रिप्रेजेंट करते हो, इट सीम दैट दे आर डिवाइन कैरेक्टर, दे हैव डिविनिटी। वी फाइंड ग्रेस ऑफ गॉड विद देम। उनके साथ ऐसा लगता है कि ग्रेस ऑफ गॉड रहा। we find that thing. So you can just see, you can just understand कि in the field of poetry we find, पोइट्री में भी बदलाव हुआ। पोइट्री में बदलाव, जहां ब्लैंक वर्ड चलता था वहां हीरोइक कपलेट आया। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी में जहां ब्लैंक वर्ड था, यहाँ पे हीरोइक ट्रेजिडी में हीरोइक ट्रेजिडी आता है। शेक्सपियर जहाँ पे अपने कैरेक्टर्स को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा दिखाते हैं, ये उसमें दिखाते हैं कि डिविनिटी है। उसका थीम लव एंड वैलर उन्होंने बहुत दिखाया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद इनका जो कंट्रीब्यूशन एक और रहा है इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में उन्होंने क्या किया? क्रिटिसिज्म में उन्होंने जो शुरू किया, वह अगर देखा जाए तो रियली में अच्छी चीज रही है। और इसीलिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उनको कहते हैं कि ही वाज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, के फादर कहे जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वर्ड कहा कि एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस।
हर राष्ट्र का अपना एक जीनियस होता है, या एवरी नेशन हैज इट्स ओन जीनियस, जिसमें शेक्सपियर की उन्होंने बहुत तारीफ की है। सामान इरशाद भाई का, उसको नहीं करना। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने उसको जो है काफी ज्यादा जो है उसको किया हुआ है। एंड रिमेम्बर दैट कि उन्होंने जो अपने क्रिटिसिज्म में बताया, एक उसकी सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटी रही है कि उन्होंने जो है बताया कि हर 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 राज्य का, हर नेशन का अपना एक लिटरेरी टेस्ट होता है। पहली बात तो हर 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 समय और हर नेशन का अपना एक जीनियस होता है, हर एज का अपना एक जीनियस होता है। और उस और हर हर नेशन का अपना एक लिटरेरी टेस्ट होता है। ये जरूरी नहीं कि व्हाट हैज बीन सेड बाय अरिस्टोटल उस चीज को ब्रिटिशर अभी तक फॉलो करें। जिस पैटर्न पे अरिस्टोटल ने चीजों को बताया कि ट्रेजिडी में ए होना चाहिए, तो दैट दैट इज गोइंग टू बी ग्रीटेड, वेलकम विद ओपन हार्ट एंड माइंड, इवन टुडे वी डोंट फाइंड दीज थिंग। तो एक जो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वह इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा उन्होंने ही हैज रिटन सो मेनी अदर थिंग्स। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम एन्नस मिराबिलिस रही है, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, जिसमें उन्होंने लंदन फायर का जिक्र किया। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लंदन फायर जो 1666 ईस्वी में आया था, हुआ था, उस लंदन फायर का जिक्र उन्होंने एन्नस मिराबिलिस नाम की पोएम में किया हुआ है। एक और घटना हुई थी कि प्लेग प्लेग 1665 ईस्वी में हुआ था, और उस समय थिएटर कुछ समय के लिए फिर से बंद हो गया था। तो यू विल कम टू नो कि उस प्लेग का भी जिक्र उन्होंने किया हुआ है, और बाद में उन्होंने कुछ ड्रामा वगैरह भी और लिखे हुए। तो दीज थिंग्स भी यू फाइंड। और इनकी इसी कंट्रीब्यूशन को देख करके रोमांटिक जो नॉवलिस्ट थे सर वॉल्टर स्कॉट, उन्होंने इनको ग्लोरियस जॉन का भी दर्जा दिया हुआ है। ही हैज बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस जान करके। तो दीज आर द पॉइंट्स जो एज अ राइटर मैंने आपसे उनको उसको लेकर के डिस्कस किया। आई जस्ट टोल्ड यू, आई जस्ट सेड कि व्हाट डू यू फाइंड हियर। सो आई थिंक कि इस लेक्चर से आपका एक माइंड मेकअप हुआ होगा कि जिसे मुझे पढ़ना है वो किस एज से बिलोंग करते हैं। वो जो है एज ऑफ रिस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं, जिसकी डेट 1660 से 1700 तक है। इस एज को हम क्यों एज ऑफ जॉन ड्राइडन कहते हैं, क्योंकि जॉन ड्राइडन वाज द लीडिंग पोएट। इस एज में क्या हुआ था, किंग चार्ल्स सेकंड जो है फ्रांस से वापस आए थे, ही गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। दिस इज व्हाई दिस एज इज नोन एज रेस्टोरेशन एज। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना। अगेन वी फाइंड किंगशिप, अगेन वी फाइंड किंगशिप। मैंने चार्ल्स फर्स्ट की कहानी बता दी, कैसे 1649 में उनकी हत्या की गई। मैंने बताया कि उनकी हत्या के बाद कैसे ओलिवर क्रामवेल आते हैं 1649 से 1658। फिर उसके बाद रिचर्ड क्रामवेल आते हैं। फिर कैसे थिएटर को रीओपन किया गया, और यह जो एज है किन किन चीजों के लिए फेमस रहा है। सटायर के लिए, खासकर पॉलिटिकल सटायर, आयरनी, हीरोइक कपलेट, कोर्टली मैनर, कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को लेकर के, और कैसे वो 1668 में लाउरिएट पोएट बनते हैं, उसको लेके मैंने बात किया। फिर मैंने बताया कि कैसे पोइट्री के फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एक उनका वर्क है मैक पेक्नो। तो मैक पेक्नो में उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स को क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो ऐसे नहीं कि केवल इतने ही, और भी उनके वर्क रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपको एप्सैलम एंड एचिटोफेल और साथ ही साथ आल फार्लप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए, आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। ये तो मैंने एक आपको आपको हल्का सा एक ग्लिम्स दिया कि इस तरह से हमें स्टडी करना है। मैं दोबारा एक एक पॉइंट में करके बताऊंगा कि कब वो पैदा हुए, मैं लिख पाऊंगा जैसे मैं टेंशन को लेके चल रहा हूँ। तो किसी भी राइटर पर डायरेक्ट लिखवाने से पहले जरूरी है कि उसकी पूरी एक पूरा लाइफ हिस्ट्री, और साथ ही साथ व्हाट ही डिड एंड इन विच फील्ड ही इज पॉपुलर, ये इस पर बात करना जरूरी था। तो आई हैव डन एंड आई थिंक नाउ यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। What was the main principle in neoclassical age?
देखिए, जब आप हाई मोरल और लूज मोरल की बात कर दिए तो कंट्रास्ट तो यहीं पे नजर आ रहा है। या तो हाई मोरल होगा या तो लूज मोरल होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक तो हाई मोरल रहा है और क्या रहा, एक लूज मोरल और कौन सा एक चीज था? ट्रू सेंस। देखिए, अगर आप ये देखेंगे ये तीनों चीजें पाई जाती हैं और इसमें ऑल ऑफ द एबव ही सही होना चाहिए। और इसको इस तरह से आप जो है पाएंगे कि जब आप चूंकि पूरा नियो क्लासिकल एज की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर चीज की नहीं बात कर रहे हैं। आप अगर एक पोयम लिख लीजिएगा जो लूज मोरालिटी की बात होती है, तो लूज मोरालिटी जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी, जिसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर कहते हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको जो है, उसमें लूज मोरालिटी आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी में या कॉमेडी ऑफ मैनर में मिलेगा। लेकिन जहां तक आपको हाई मोरालिटी की बात होगी, तो उस हाई मोरालिटी की जब आप बात करेंगे तो वो हाई मोरालिटी आपको एशियन मैन में मिलेगा। जहाँ पे एशियन मैन में और कुछ ऐसी पोयम्स हैं जहाँ पे ये बात कही गई है, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन। और जहाँ पे आप मोरालिटी की बात करेंगे तो जो प्री रोमांटिक पोएट्स हैं जो नियो क्लासिकल एज में आते हैं, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चा, उसमें मोरालिटी का इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि डोंट लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयज, नॉट होमली जॉयस, नॉट डेस्टिनी ऑब्सक्योर। और जहां तक ट्रू सेंस की बात है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पे इमेजिनेशन की कोई जगह ही नहीं थी। जब इमेजिनेशन की बात नहीं होगी तो ज्यादातर वो किस ग्राउंड पे बात किया जाएगा, वो ट्रू सेंस पर ही बात किया जाएगा। ये तीनों एस्पेक्ट वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और इन तीनों एस्पेक्ट में अगर आप सबसे ज्यादा अगर कोई चीज देखिए, और उसके अलावा जो मोरालिटी की और बात है, वो आपको हीरोइक ट्रेजेडी में, हीरोइक जहां पे सब्जेक्ट मैटर सीरियस होगा, वहां पर हमेशा जो है क्या होगी, मोरालिटी हाई रहेगी। तो यू फाइंड दीज थिंग्स आल्सो। अब आप ये मुझे बताइए कि उसमें आंसर आप क्या पाए हुए थे? उनका क्या आंसर की उनका नहीं आया था? आयोग का कोई आंसर की नहीं आया था? अच्छा अच्छा। तो देखिए, जहां तक है ये तो तीनों चीज उसमें पाई जाएगी और इसे आल ऑफ द एबव भी होना चाहिए था वहां पे, क्योंकि हाई मोरालिटी भी है और जो मैंने अभी आपको बताया कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे रहा है। तो यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट, क्योंकि ये एक एक बहुत ही कॉमन सी और ये चीज, ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें इंफॉर्मेशन काम नहीं देगा, इसमें आपको चीजों को डिस्कस करके समझ, जैसे जितनी चीजें डिस्कस की गई, जब आपको ये बताया कि ये चीज यहाँ पे पाई जाती है तो तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ, रेस्टोरेशन कॉमेडी में इंट्रीग रहा है, लस्ट रहा है, पैशन रहा है। तो उससे ज्यादा लो मोरालिटी कहीं दिखाई नहीं जा सकती। उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, आजकल चल रहा शी स्टूप्स टू कांकर करके एक प्ले है, शी स्टूप्स टू कांकर, वहां पे आप देख सकते हैं, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। और जो हाई मोरालिटी की बात है, हाई मोरालिटी आपको एप्सलम सॉरी उसमें उससे ज्यादा कहाँ पे मिल सकता है, जहां पर भी सटायर होगा वहां पे हाई मोरालिटी की बात होगी, क्योंकि सटायर का पर्पज ये होता है कि दे ट्राई टू फाइंड आउट द वीक पॉइंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि सम इम्प्रूवमेंट विल कम इन द नेचर ऑफ समवन, जिसके ऊपर वो सटेराइज किया जा रहा है। तो और बाकी इमेजिनेशन की जगह नहीं थी, इसलिए ट्रूथ का वहां पे सेंस रहा है। हम्म, हाँ, सिर्फ- हम्म, हाँ, सेवर से क्या था, सेवरल, हाँ, सेवरल विलेजेस वर बर्nt डाउन।
Yeah, several villages. हाँ, हाँ। देखिए, जहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो सिंपल सा है कि कई गाँव को जला दिया गया, इसलिए कि ये पैसिव वॉइस है। कई गाँव जल गए नहीं, अपने आप से नहीं। सेवरल विलेजर्स वर बर्nt डाउन, पैसिव वॉइस बन रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि ऑलरेडी उसमें एक ही सेवरल वर्ड आ रहा है, तो अगर आप उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कई, और इफ यू से कि सेवरल विलेज है कि विलेजर्स, ये चीज़ विलेजेस विलेजेस आया था, सेवरल विलेज। कई गांव जल गए, या वहां पे ये होता कि विलेजेस ग्रामीणों को जला दिया गया। तो इस तरह का अगर विलेजेस आया था, VILLAGERS, तब तो समझ में आ रहा है। इफ देर इज अ वर्ड विलेजेस, विलेजेस है तो कई गांव जला। हाँ, कई गांव जला दिए गए, पैसिव वॉइस ही होगा, कई गांव जला दिए गए, उस हिसाब से उस पे जाना चाहिए विलेजेस में। तो इस तरह की पहली बात तो क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट, एक 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 इसमें पूछा गया था। हाँ, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा टेक्निकल है, और इसको तो ग्रामर वाले ही ज्यादातर बता सकते हैं। यू कैन जस्ट कंसल्ट KD सर, और वो जो है इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें। लेकिन इफ यू, अगर आप मेरा आंसर जानना चाहते हैं तो वो सिंपल से यही है कि कई गांव को जला दिया गया, क्योंकि जो गांव है उसी गांव में ही विलेजर्स रहते हैं। तो जब गांव को जलाया जाएगा तो विलेजर्स उसी, अब उन्होंने सीधे सीधे वर्ड नहीं निकला लिखा कि कई ग्रामीणों को जला दिया गया। तो जो भी है ये पैसिव वॉइस है, तो इसलिए जला दिया गया, ये चीज जिसमें सेंस होगा वही होना चाहिए, जला दिया गया वाले। तो आई थिंक नाउ आई शुड कंक्लूड दिस लेक्चर एंड वी विल मीट इन मॉर्निंग। हम लोग सुबह में मिलेंगे, डोंट वेट फॉर एनी क्लास। सुबह में हम लोग ट्रेडिशन को आगे पढ़ेंगे, और कल शाम को फिर 5 बजे जॉन ड्राइडन। तो अभी 2 दिन आपको, एक शाम को जॉन ड्राइडन और उधर जो है टेनिशन। जी। देवर द, इफ आई से कि उनका कोई स्टुअर्ट डायनेस्टी या उससे राजशाही से नहीं संबंधित था। वो जो है आम आदमियों की एक तरह से, जो आम जो भीड़ थी उसके एक नेता बन चुके थे। उनका ऐसा नहीं था। हाँ, नहीं, हम इनको ऑर्डिनरी पर्सन भी बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका कोई रॉयल या मतलब ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं था जो किसी डायनेस्टी से या राजवंश से रहा हो। जैसे हमारे और आपके बीच में ही कोई निकल करके एक तरह से नेतृत्व करने लगे, तो वो एक इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ऐसे ही वो थे जो हो गए, लेकिन हाँ, ये चीज कहा जा सकता है, रिवोल्यूशनरी पर्सन थे, लेकिन सोसाइटी में उनका एक नेम और फेम रहा होगा। ऐसा नहीं कि देवर वेरी कॉमन पीपल, देवर द गुड ऑरेटर। ओलिवर क्रॉमवेल बहुत अच्छे ऑरेटर थे जो है। तो जैसे अब आप ये समझिए कि हिटलर क्या थे, हिटलर कुछ भी नहीं थे, लेकिन हिटलर के अंदर लीडरशिप की क्षमता बहुत ज्यादा थी। होते होते वो जो है कहाँ पे पहुंच गए। जी। ठीक, ओके, वी विल मीट इन मॉर्निंग। जी सोनाली जी। हम्म। मैं, अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ठीक, ठीक, ओके।